Cool. So, hi and welcome to our today's episode. It's with Ronika. She is my junior from VIT, a mechanical engineer. She right now works at Intel, but she has a very interesting story. She has worked across NASA, has cracked multiple top universities in US, and worked across multiple platforms. तो आज जानेंगे कि हाउ डिड शी मेक इट थ्रू एंड इफ यू हैव अ ड्रीम ऑफ वर्किंग एट नासा और क्रैकिंग लाइक टॉप universities in US for mechanical engineering and related fields. So how can you go about it? So Veronica will start at the very basics. So the first time I got to know you was this thing rumor था कि you had went to NASA during school and तू कोई competition जीती थी बहुत ही fancy in school itself. So can you tell us more about it? Like what was the competition about? How did you get to Yeah. know about it and how did you win? Yeah, first of all, thank you so much. You flattered me so much. I feel like on cloud nine, I don't think I've done so much, but thank you so much. It was very kind of you to say such nice things. Um, so I was in Bihar till my 10th grade, but for my 11th and 12th, I went to New Delhi. But before that, also because I was so interested in pursuing space or, anything related to space tech, I was fortunate enough to have internet. उस समय ऐसे 3 GB इंटरनेट मिलता था महीने का, but और 2G speed में इंटरनेट मिलता था, but I had internet and I used to make it a point that I'm reading one space related Wikipedia article or opening space.com daily to learn about things. And it was my sister who told, and I have been interested in space since I was very young. Like my first book was Antariksh Ki Udaan that I read when I don't even know when I was like 5 year old. And actually, it was a pretty advanced book. It was quite thin, but it talked about what's inside a rocket and things like that. So it was pretty advanced. And I also remember reading Marie Curie's biography when I was in like second grade. And yeah, my cat is named after Marie Curie now. So Nice. I feel like I come from a family where there was a lot of emphasis on education because my both my parents were teachers. So one thing that my family had, even though we definitely lacked a lot of things, but one thing that we had was loads of books. Everyone in my family is a reader. My mom used to read magazines. All my sisters, like both my sisters, read a lot, and my dad also reads. So anything from Premchand to Dan Brown, you can find in my house because Nice. इतनी स्टार्किंग लाइक पर्सनालिटीज है सबकी तो सारे ऐसे मतलब सारे बुक्स हैं बट ऐसे मेरे को ऐसे लगता था कि लाइक साइंटिस्ट आर डेफिनेटली द कूलेस्ट पीपल एंड आई डेफिनेटली वांट टू बी समबडी लाइक दैट तो ऐसे वैसे बुक बुक पढ़ के ऐसे बड़े बड़े हुए और पहले तो मतलब मैं बचपन में ऐसे बहुत ही गंवार सी भी थी ऐसे नर्सरी केजी में हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ मैं फिर लेकिन सेकंड ग्रेड में आई वेंट टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल तो मतलब कहने का इंग्लिश मीडियम था क्योंकि बिहार में कोई ऐसे इंग्लिश बोलता नहीं अंग्रेजी आती नहीं है किसी को अंग्रेजी मतलब मेरी लाइक अंग्रेजी के टीचर्स को भी अंग्रेजी नहीं आती थी तो कोई बोलता नहीं है नहीं नहीं इट्स गुड या टू हैव सम बैकग्राउंड इन्फो क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यही कंफ्यूजन था कि हाउ कैन अ हाउस होल्ड फ्रॉम बिहार बी इंटरेस्टेड अ चाइल्ड फ्रॉम बिहार कैन बी इंटरेस्टेड इन स्पेस फर्स्ट ऑफ ऑल तो अच्छा हुआ तो उस पे आई गॉट सम कॉन्टेक्स्ट नाउ बट हाँ प्लीज कंटिन्यू हाँ तो ऐसे बहुत ज्यादा टीचिंग फैमिली बुक्स एंड ऑल और उसमें मैंने अपना एक कॉर्नर ढूंढ लिया कि मेरे को तो स्पेस पसंद है क्योंकि हर तरीके की बुक्स थी घर में I remember reading this book about 99 greatest inventions, and it had everything from stethoscope to telescope. And it so happened, I feel like every kid at one point in their life says that they want to be an astronaut or that they love the night sky and they want, like, I feel सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स का बहुत कॉमन पॉइंट होता है कि या तो उनको रॉकेट बनाना होता है या तो उनको रोबोट बनाना होता है या तो उनको कार्स बनानी होती है सब सब इसी ऐसे चक्कर में लेते हैं तो आई फील लाइक उसमें बहुत सारे किड्स का कॉमन ग्राउंड होता है एंड फ्रॉम देयर आई जस्ट आई डोंट नो बहुत ही ज्यादा ऐसे इन स्पेस में इंटरेस्ट था तो आई ग्रू अप लाइक आई रिमेम्बर रीडिंग अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम so Flipkart would not deliver in Ara, but my sister was living in Chandigarh and I was in seventh grade. So she got so I used to watch documentary on Discovery Science. I saw Stephen Hawking, and he had this really nice documentary series. It was actually called A Brief History of Time, and I realized that that's a Yeah. text, like that's a book he wrote, which was a bestseller. So
My sister ordered it, and when she came, she brought me that book, and I read it in seventh grade. So in seventh grade, I learned about string theory and quantum mechanics. I still remember the chapter four was about quantum mechanics, and they start talking about top, bottom, and all the different spins. तो सेवेंथ क्लास में क्या समझ में आ रहा था मेरे को क्या स्पिन है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो आई वाज लाइक इसके लाइक मतलब आई वाज रीडिंग बट वो एक चैप्टर फोर मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया और कुछ but I was reading everything and I was really fascinated. I would sit at my terrace after school, read it. And then from there, I read like books written by Michio Kaku. I've actually read all the Stephen Hawking books, Michio Kaku, Carl Sagan's Cosmos in school. You would always find me with a book. इट्स And वेरी हार्ड टू बिलीव बिकॉज मतलब मैं अब पढ़ रहा हूँ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और मुझे अभी भी समझ में नहीं आती पूरी तो स्कूल गर्ल इन बिहार रीडिंग लाइक ऐसे क्रेजी बुक्स इट्स वेरी फैसिनेटिंग yeah, that's why I feel like I owe a lot to people like Stephen Hawking and Carl Sagan who perpetuated so much about science, right? Like Carl Sagan was the first person to talk about anything related to space on TV. So I like people like that who talk about things, and even like I feel it's very important because आज भी ऐसे women engineer talk a lot about कि आसपास कोई है ही नहीं जो कि बात कर कोई दिख ही नहीं रहा engineer मतलब growing up I also never saw a woman engineer right though and there are not many scientists to look up to as well बट आई फील इन इंडिया में से हमें अब्रॉड करते हैं हमें ऐसा सिखाते हैं कि मतलब अरे हमारी छोरियां लाइक तो कुछ भी कर लेंगी कुछ भी उखाड़ लेंगे विच इज अ वेरी गुड एटीट्यूड सो आई नेवर नीडेड टू सी अ वुमन इन स्टेम टू बिकम अ वुमन इन स्टेम I just knew that अरे मतलब that thought also never came to my mind. So this happened. So I read a lot of textbooks. I grew up. In ninth, I figured out about this competition. Like I had gotten internet, so my sister actually sent me this document called Movi, which I think was the winner for that year for this competition. It's NASA's Space Settlement Design Competition. So it's a very structured competition because they release a 10-page request for proposal and they mention their design specifications in it कि मतलब ऐसा कुछ बनाना है जिसमें जो space में रहे like a structure in space that is capable of producing pseudo gravity has a water management system a waste management system and also like you have to like think about how the housing is going to be what kind of business what kind of robot it's a design concept competition but you kind of have to make hand sketches and CAD and you have to do calculations to support what you're doing I can send you documents later जो मतलब मैंने काम करा था but basically it's a concept adapted from people like Gerard O'Neill and also people like Buzz Aldrin he had a concept for Mars Earth Cycler तो वो डॉक्यूमेंट मेरे को पढ़ के मतलब लगा और वो स्कूल के बच्चों का कंपटीशन होता है तो अमेरिका में कोई बच्चे होंगे उन्होंने मूवी बनाया था विच वाज अबाउट इंटरस्टेलर स्पेस सेटलमेंट मेरे को चले ऐसा चले लगा कि मतलब इस स्कूल के बच्चे इतना सेक्सी काम कर रहे हैं फिर मेरे को लगा कि अरे मैं भी कर सकती हूँ ऑल दैट बट अभी टेंथ बोर्ड आ रहा था बट स्टिल आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट तो इन द प्रोसेस आई लर्न अ लॉट एंड आई स्टार्टेड कंपाइलिंग आउट डॉक्यूमेंट बट उस टाइम मेरे को कोई कैड स्किल्स नहीं थी ये भी नहीं पता था कि मतलब ब्लेंडर क्या होता है सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं आसपास कोई भी नहीं था जिससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आई रिमेम्बर उस टाइम पे मेरे पास फिरजी की डिस्टेंस लर्निंग बुक्स होती थी आईटी जेई के लिए या पियर्सन की बुक्स होती थी आईटी जेई के लिए तो मतलब उसमें कोई क्वेश्चन अगर मेरे से सॉल्व नहीं होता था तो कोई टीचर भी नहीं था जिससे पूछो तो वो बता दे लाइक I remember one time one of my math teachers he was like, "Oh, you can give me your questions. You can enlist it, and then I'll tell you." And I would enlist all the questions. I would have like problems and then there was no one to help me think better than how I was already thinking. तो ये सब थोड़ी प्रॉब्लम्स है तो इस बारे में तो मतलब मैंने मेरे मेरे एक्चुअली सारे टॉपर्स हम लोग सारे ऐसे साइंस कॉम्पिटिशन्स वगैरह में क्विजेस में या फिर ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की या स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते थे डिबेटिंग के या स्पीचेस के या ऐसे साइंस प्रोजेक्ट्स के हम लोग साथ में ही करते थे तो वी वर वेरी टाइट सो आई टोल्ड देम अबाउट दिस एंड दे वर like the other guy, like there was this one friend who's a very close friend of mine. He literally mocked me. He's like, "तू जा रही है ना नासा? तू जब जाएगी ना, ऐसा होता है like you'll go to NASA." And then they were laughing. And I also, but I don't know. I never even for a second doubted that I'll go. Okay, and from that moment in a year, I was in NASA. And it was so unreal because उस टाइम तक मतलब स्कूल में प्लेन में भी कभी नहीं बैठी थी पासपोर्ट मेरे घर में किसी का पासपोर्ट नहीं था पहला पासपोर्ट मेरा बना मतलब यूएस आ गई मैं और like literally मैं I was in Florida walking on the roads and I was thinking
कि हम नासा आ गए, मतलब हम कैसे आ गए नासा, मतलब हम कैसे अमेरिका में, हम कैसे हैं ऐसा, बिकॉज कोई किसी को भी नहीं देखा, लाइक पेरेंट्स के लिए भी बहुत अनरियल था, एंड इट एक्चुअली बिकेम अ वेरी पॉपुलर न्यूज इन बिहार. आई केम इन द ऑन द फ्रंट पेजेस, दैनिक जागरण, प्रभात भास्कर, लाइक my parents came on local TV. I was in Delhi, so I didn't come on local TV, but I was at one point I got interviewed by CNN, which was weird. Ab Yeah, जब मतलब ऐसे हो गया कि मतलब जाना है अभी, तो basically what really helped me was this 10th के 10th 9th 10th में I was compiling documents. So जब I got the opportunity and I went to DPS in Delhi, वहाँ पे मतलब बच्चों ने ऐसा करा हुआ था एक साल पहले. एक्चुअली मेरा मेरा ही स्कूल एशिया में विनर था, and they had gone already to represent our country. So I became friends with these people. Like, I remember my only agenda to study in DPS was being part of their astronomy club. When I joined the school, I realized that they didn't have an astronomy club. But that was the first question I asked on my first day कि astronomy club है क्या स्कूल में? And they were like कि नहीं, लेकिन वो ऐसे बच्चे हैं जो नासा गए थे पिछले साल, ये वो. फिर that was the first thing I did, getting in touch with those people, those seniors, and then इंटरव्यूज हुए, प्रॉपर इंटरव्यूज हुए इस कंपटीशन के लिए. काफी हाइप्ड अप कंपटीशन था स्कूल में भी, क्योंकि ऐसे बच्चे जीते हुए थे and अमेरिका गए थे तो. और वो बच्चे वापस आके कलाम से भी मिले थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा बड़े. आप भी मिलो मैं कलाम से, तो आपको एक्सो नहीं स्पेस यार, वाला फील होगा. I ओ यू नो unfortunately टर्नर. हाँ, so basically that year itself actually Kalam was supposed to give out that award, but he died, he passed away that year, so I got it from the president. But हाँ यार, मतलब very fascinating, and all the also the point कि अगर कुछ भी, स्पेशली इन स्कूल एंड कॉलेजेस, इफ यू आर प्लानिंग टू रीच आउट फॉर अ कंपटीशन, प्लान टू मतलब ऐसा कंपटीशन में पार्ट लेने वालों, तो डू रीच आउट टू योर सीनियर्स जिन्होंने पहले पार्ट लिया. इट हेल्प्स अ लॉट. तो हाँ, प्लीज हाँ, तो कंटिन्यू. मतलब वो बहुत ही सही चीज हो गई, क्योंकि पहले तो सीनियर्स का गाइडेंस था, प्लस जो बच्चे थे वहां पे ना भाई, दे वर द स्मार्टेस्ट पीपल आई एवर मेट. लाइक बच्चों को कैड आता था एकदम, बहुत ही लाइक फाड़ कैड आता था स्कूल में. कोडिंग में बच्चे एकदम. एक मेरा दोस्त था उस टाइम पे, लाइक ही वाज मेकिंग 30 lakhs per year in school that time because he was so good at software development that he was hired by a company here in America. Like मेरे स्कूल में इतने फाड़ बच्चे थे कि मतलब ऐसे, मतलब उनको फिजी जाने के लिए 100% पैसे मिलते थे ऐसा. एंड उनको पैसे मिलते थे, लाइक फ्री तो था नहीं, उसके ऊपर पैसे मिलते थे कि आओ फिट जी. बट लाइक दे gave JEE mains and they were not too keen on JEE, and they ended up coming to like UC Berkeley, Stanford, MIT, those kind of places. Like even U Washington, Purdue, those kind of places. So it was really nice to be in the vicinity of those kind of people, and they were very nice towards me. Like we hear really bad things about Delhi people, but for me, like Delhi was a really fortunate experience. I had never tried a burger, I had never tried KFC, I had never done gaming before. My friends introduced me to those things. Like उस टाइम तो हिंदी भी, मतलब हम वाली हिंदी होती है हमारी बिहार में, तो हिंदी भी मतलब उनकी वाली हिंदी नहीं थी. फिर बहुत सारे हमारे वर्ड्स होते हैं जो बहुत डिफरेंट होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं पसार दो या भुइयां, ये सब कुछ किसी को समझ नहीं आता जैसे हमारी हिंदी है. So like they were very kind to me. I was like a very like nerd who would, like I was very nerdy, but they were very nice to me. Like they would like help me fix my pronunciation, not in a demeaning, degrading way, but in a way where they were like supportive, and they were like, "अरे अब दिल्ली आ गई है, वैसे सीख ऐसा." So I was really fortunate to meet like really nice people. Not all of them were nice, but most people I was close friends with were super supportive and nice towards me. तो वो सब हुआ फिर. I did that competition with them. It was a team, not just me alone. It was a team of 10 people, and we did 4 rounds before we went to the US. So it was a really good experience. I got a lot of exposure, and everyone in this team, almost everyone, ended up coming to the US for their undergrad. But at that time, because it's so insanely expensive, it was unfathomable for me, because I feel for any middle class family in India, it's just very expensive to even apply, right? Nice. Two questions on that. First, does this competition still continue, and where can people find about it? And second, as you said, most of your friends actually went to US for the undergrad itself. Hmm. So, do you now, in general, recommend people to in India to Hmm. pursue an undergrad abroad, or doing an undergrad here and then doing masters abroad is a better option according to you in hindsight? हाँ, मतलब अभी, so your question one, uh, where can you find the information about this competition? So
I would recommend students to not just look at NASA's website, but to also look at CERN's website or LIGO's website or even Lego's website, because Lego has this Mindstorm division, right, where they have like robotics competition. There is also something called as first robotics. There are combat competitions. And पहले तो ये भी बिल्कुल मत सोचो मतलब कि बस इंडिया में competitions करेंगे, पहले इंडिया को acquire करेंगे, फिर बाहर जाएंगे. Like तुम ऐसा सोचो कि मतलब बेस्ट चीज क्या है. जैसे जब मैं स्कूल में थी तो गूगल का साइंस फेयर होता था, या मून शॉट करके I, एक I had applied for that. oh nice. Yeah, I knew you are the kind of person who would apply for it. But ऐसे कुछ रोवर डिजाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो कोई भी तुम्हें जो भी कंपनी पसंद है, आई गारंटी यू दैट दे आर डूइंग समथिंग फॉर स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू चेक ऑन देयर वेबसाइट. I'm pretty sure like Google takes a lot of initiative. Like Google has Google Code, and my friends had gone in school for that. So it is for school students, right? And nowadays, आज तो मतलब अभी I judged a hackathon in LA. I judged it last time as well. उसमें भी मतलब encourage करते हैं लोग कि स्कूल में ही आ जाओ, हाई स्कूल में ही आ जाओ. तो अभी किसी भी चीज के लिए रुकना क्यों है? तो whatever you like, just look at that company and see what they're doing for students. And like अभी तो बहुत ज्यादा resources हैं, तो reach out to people on LinkedIn. Like you can like मैं तो ऐसे CEO वगैरह को भी मैसेज कर देती हूँ, मतलब घोस्ट कर दो मेरे को, but I message everyone. तो just reach out to people, like someone will reply. First year of VIT, तो उन लोगों ने मतलब ऐसा ऐसा मतलब I reached out to this one guy who was the only Indian I could find who was working in NASA Jet Propulsion Lab. And I met him and now he's my friend. तो वो चीज इतनी फार फेच्ड लगती थी ना उस टाइम पे कि मतलब ऐसा मतलब I remember I drafted that email at 2 a.m. asking him advice about what I'm doing and what I'm not doing and what I should be doing to be like him. And he was so kind. Like I had to send just one email and he replied. तो बहुत सारे लोगों मतलब I have sent so many emails और बहुत मेरे को मतलब ज्यादातर रिप्लाई नहीं आता है, बट बहुत बारी रिप्लाई आ जाता है. एंड once you start sending these emails, मतलब तुम कुछ सीखते हो उनकी life journeys, and also just by stalking people you learn a lot about their careers, right? What they did right, what they did wrong. So I think it's very important, and internet has just made things really easy. Even when I was in Ara, like my family never discouraged me from using social media. So my sister told me this when I was very young, like fifth grade, I joined Facebook, and my sister told me, "Oh, why are you like adding people from Ara? Like you should add people from other schools and other parts of India and see those kids and talk to those kids and see what they are doing." So because I was talking to these kids, I knew about KVPY, I knew about IIPT, all these different kinds of Olympiads, even like national science Olympiads. Like मेरे को सब पता रहता था. जैसे एक बारी नेशनल साइंस ओलंपियाड मेरे स्कूल में आता था, बट नो वन वाज सीरियस अबाउट इट, तो एक साल आया ही नहीं. But because I was so well connected with students, I pushed my teachers so much because I used to work really hard. Like I used to get gold medals in all three. मतलब उतना competitive होता भी नहीं था आराम में, क्योंकि उतने सारे बच्चे बहुत तेज होते भी थे. But I used to get first in every subject every year, right? So I used to be very serious about it. I used to follow the syllabus and study properly. So I was like कि अरे हमारे स्कूल में क्यों नहीं आया? And then I pushed my teacher, and then my teacher reached out to them, and they were like, oh, okay, we'll extend the date for you guys. So when you're well connected, when you're seeing other people, you can learn a lot from them. Like internet is a beautiful thing. If yeah, so I feel like the timing really mattered, and internet happened to us at the right time. And even though like it was on the cell phone, it was like 2G internet, और घर में एक ही मम्मी का फोन था जिसमें चलता था. But it was the best thing to happen to me. My parents never stopped me from using technology. Like हम लोग के घर में लैंडलाइन फोन नहीं था. तो मैं जब सेकंड स्टैंडर्ड में थी तभी मेरे मम्मी पापा ने ऐसे, मेरे को घर में अकेले रहना पड़ता था, मम्मी पापा वर बोथ वर्किंग, और my sisters are very old compared to me, so they were already like they had already done their 10th and gone outside to study. So my parents were very kind that way as well, because मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे second standard में इतना trust किया कि they gave me like a Tata Indicom phone. मतलब like they were like very trustworthy towards me. Plus in Ara nobody allows their like daughter to talk to men. लेकिन मेरे मतलब जो मेरा ये science project वाला group था, it so happened, and it's really saddening, but it was just men. But my parents never said anything, and because my parents would never say anything, ऐसे teachers भी स्कूल में बहुत bully type के होते थे, वो लड़के लड़की बात मत करो, but that wouldn't work on me because my parents were just so supportive. And also because my grades were very high, and I used to top in my school in Ara, so like nobody cared. Because so I think that can become an advantage if you're doing really well in your studies. Other things won't impact you so much. That is, I feel, a benefit of growing up in an Indian household. Like
your studies transcends everything. So if you're like you'll be allowed to wear whatever clothes you want. Like if you like as a woman, I feel. Sorry, I'm deviating a lot. So this was the first thing. सेकंड क्वेश्चन था कि यूएस आना चाहिए अंडर ग्रेड में कि नहीं. तो देखो डिपेंड करता है रिसोर्सेज. अभी जैसे ये मेरे दिल्ली के फ्रेंड्स है, उनके पास बहुत अंधा पैसा भी रहा. अंधा पैसा है तो आ जाओ, मतलब बेस्ट ही है. क्या ही है मतलब, तुम व्हाट विल यू लूज इवन इफ यू डोंट गेट अ जॉब, यू कैन जस्ट गो बैक. यू स्टिल नेट तो कुछ लॉस है नहीं ना. यू विल गेट अ डिग्री फ्रॉम अ रियली गुड स्कूल. इट्स लेस कंपेटिटिव व्हेन यू अप्लाइंग फॉर अंडर. जब तुम ग्रेजुएट लेवल पे अप्लाई करते हो, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं. आईआईटी के बच्चे अप्लाई करेंगे जिनके पास पेपर्स है, आईआईटी में भी टॉपर हैं. फिर कुछ बच्चे ऐसे अप्लाई करेंगे जिनके पास मास्टर्स है ऑलरेडी, यहीं पे मास्टर्स है तो वो भी अप्लाई करें दूसरे मास्टर्स के लिए. बहुत सारे बच्चे ऐसे अप्लाई करेंगे जिनके पास 4-5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एट अ वेरी बिग कंपनी. तो बहुत ही कंपेटिटिव हो जाती हैं चीजें. अ, लेकिन इफ यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली तो मास्टर्स के लिए आ सकते हैं. और अभी जैसी इकोनॉमिक सिचुएशन है यूएस में, 2-3 चीजें इंश्योर करके आना इज अ वेरी सेफ बेट. पहले इंश्योर करो कि तुम्हारे पास फंडिंग हो. सर्टेन कॉलेजेस डू प्रोवाइड फंडिंग, या तो चांसेस ऑफ फंडिंग बहुत हाई है. और दूसरी चीज एक इंश्योर करो कि इंडिया से वर्क एक्सपीरियंस लेके आओ, बिकॉज विल टॉक अबाउट इट व्हेन यू इफ यू लाइक प्लान टू आस्क अबाउट इंटर्नशिप्स एंड स्टफ. बट हाँ, बेसिकली तुम्हारा रिस्क टेकिंग फैक्टर क्या है उस पर डिपेंड करता है कि व्हेन यूल कम. अंधा पैसा है आ जाओ, लाइक बाहर. Obviously studying at Harvard is like, or MIT is better than studying at VIT. If you have money, come. uh, लेकिन हाँ, बेसिकली रिस्क पे डिपेंड करता है कि कमाना है. बट बाहर आके लाइक ऑब्वियसली कंपटीशन इंक्रीजेस बहुत ही ज्यादा कंपेयर टू इंडिया. एवरीवन इज हार्ड वर्किंग, एवरीवन नोज अ लॉट. जॉब के लिए मार्केट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है अभी तो. Nice. So coming to the next part, which is now you getting into VIT and mechanical engineering. तो first of all कि मतलब why mechanical engineering itself? मतलब ये जो field है इसमें काफी अलग streams of engineering भी आ जाती हैं and could have been a BSc in some sort of astronomy and हाँ हाँ. in this field also. तो तो how did you finalize mechanical engineering from VIT? तो पहले तो ऐसा मन था कि ऐसे फिजिक्स ही पढ़ना है. ठीक है, बहुत ज्यादा मन था थेरेटिकल फिजिक्स पढ़ने का. लेकिन सो हैपेंड कि नहीं हुआ. ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें हुई. जैसे डीसी में इंजीनियरिंग फिजिक्स अप्लाई कर रहा था, मिल भी गया था. बट फिर एक डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी हो गई जिसकी वजह से एडमिशन कैंसिल हो गया. ऐसा था कि मतलब मैंने बहुत ही फकअप कर दिया था अपने काउंसलिंग में. तो क्योंकि मेंस अच्छा था, तो आई थिंक बहुत सारे एनआईटीज प्रोस्पेक्ट्स थे. बट आई वाज नेवर टू इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग. इवन ड्यूरिंग माय 11th एंड 12th द पिक्चर ऑफ द लाइक आईआईएससी वाज देयर इन माय रूम कि यहाँ पे जाना है. एक पिक्चर थी न्यूज कटआउट की, यहीं पे जाना है टाइप्स. फिर दूसरा तीसरा मैं सोचती थी कि नाइसर या आइसर जा सकते हैं. बट जब मेरे मेंस के स्कोर था तो एक सीनियर ने देखा, बोला कि हाँ दिल्ली में कुछ भी मिल रहा था, मतलब सीएस के अलावा कुछ भी दिल्ली में मिल रहा था. तो हमने सोचा कि मतलब ठीक है. तो मैंने बस जैक दिल्ली के लिए अप्लाई किया एंड आई वाज टारगेटिंग डीसीई इंजीनियरिंग फिजिक्स व्हिच आई एंडेड अप गेटिंग. लेकिन और वो अगर नंबर 1 डालोगे तो काफी नीचे का ब्रांच है. मतलब नो वन इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग इंजीनियरिंग फिजिक्स. बट वो डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी वाला सीन हुआ. और एडवांस्ड के पहले मेरे पापा ने वीआईटी में एडमिशन लिया था एज अ सेफ्टी. और मैंने जोसा का भी अप्लाई नहीं किया बिकॉज आई वाज सो फोकस्ड ऑन जैक दिल्ली. एंड ये एक प्रॉब्लम है जो मेरे साथ होती है बिकॉज आई डोंट हैव एनीवन इन माय फैमिली गाइडिंग मी टुवर्ड्स थिंग्स. इट्स अ वन पर्सन आर्मी, राइट? बिकॉज नो वन नोज अबाउट एनीथिंग. तो no one was like I know with like after talking to my friends that their parents were involved in their counseling, or there was someone to guide them, but I didn't have it, right? So I just applied अपने हिसाब से कि हाँ जैक दिल्ली में तो मिल जाएगा. और जैसे 14-15 साल के बच्चे को, लाइक 16 साल के बच्चे को क्या समझ में आ रहा था. तो ज्यादा कुछ समझ भी नहीं आता था. तो फिर इसलिए मैंने जोसा पहले तो अप्लाई ही नहीं किया, इतना स्टूपिड वाला काम, और बस जैक अप्लाई किया. और मणिपाल भी मतलब ठीक रैंक थी, उसमें भी कुछ मिलता, वो भी काउंसलिंग नहीं अटेंड करी, सब मिस हो गया था जैक दिल्ली का. जब तक ये पता चला ना कि ये एडमिशन कैंसिल हो रहा है, बस एक वीआईटी 2 दिन बाद, लिटरली जब दिल्ली से जब कैंसिल हुआ उसके 2 दिन बाद वीआईटी बचा हुआ था. और वीआईटी में जब पापा काउंसलिंग के लिए गए थे तो ही वाज आस्किंग मी क्या लेना है. तो आई हैड सेड मैकेनिकल बिकॉज आई सेड दैट आई थॉट दैट इफ आई डोंट गेट टू डू physics, I would be happy doing mechanical and then eventually aerospace engineering and building rockets. Like that's something I would settle for. So I think it played out beautifully for me.
बट ऐसे जब भी पापा ऐसे गए थे तो पापा को ऐसे इंग्लिश नहीं आती, तो वीआईटी में किसी को हिंदी नहीं आती। तो जब पापा एडमिशन ले रहे थे तो इवन इन वीआईटी पीपल वर लाइक कि शी इज अ गर्ल, आर यू श्योर यू वांट मैकेनिकल, लाइक दे आस्क्ड माय डैड, लाइक फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर थिंकिंग कि मेरे पापा ऐसे तो खुद तो बेवकूफ से हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे मेरे पापा। एंड दे वर लाइक कि अच्छा मतलब शी इज अ गर्ल मैकेनिकल, लाइक दे सेड इट 5 times, ओके। एंड देन माय डैड वाज लाइक सम लाइक अलग थग लाइफ में जी रहे थे पापा। तो पापा फाइल में से मेरा नासा का सर्टिफिकेट निकाल के दिखा दिया एंड ही इज लाइक कि या वी वांट मैकेनिकल, डोंट गिव हर एनीथिंग एल्स, लाइक सो दैट्स हाउ आई गॉट मैकेनिकल। और ऐसे लिटरली मतलब मैं आई थी ना ऐसे स्कूल में, मैंने खुद वो फोन रखा था, फ्लिप फोन रखा था पिंक कलर का। मैं इतने रश में आई थी वीआईटी, 2 दिन में कोई कपड़े नहीं खरीदे मैंने कॉलेज आने के पहले। दीदी लोगों के कपड़े लेके आ गई, फोन भी नहीं था मेरे कॉटन में फोन, क्योंकि आई थिंक अभी तक भी आ रहा मेरे से कुछ डिलीवरी वगैरह का सीन अच्छा नहीं था। फिजिक्स में भी जब 11th 12th में पढ़ रहे थे तो आई वाज वेरी लाइक स्ट्रांग इन मैकेनिक्स पार्ट ऑफ स्टफ, लाइक जितने भी ऐसे रोटेशनल मैकेनिक्स, और वो बहुत नेचुरली आता था मेरे को कंपेयर टू जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है जो 12th वाला। तो उससे भी नेचुरली मेरे को लगता था कि मेरे को 11th वाला पार्ट ज्यादा पसंद है कंपेयर टू 12th वाला पार्ट। और ज्यादा मतलब उसमें भी बहुत ऐसा, उसमें भी कोई और इंजीनियर हम लोग जानते नहीं थे, तो कुछ सेगमेंटेशन पता नहीं था कि मतलब मैकेनिकल में एक्चुअली पढ़ाते क्या है। तो ऐसे ही मतलब मैंने ऐसा सोच के मैकेनिकल बोला था और मैंने फिर वही करा। Yeah, actually, it's great कि your family supported your decision of taking a mechanical engineer, even though college वाले and I assume society in general would have said कि लड़की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मत कराओ। मी बीइंग अ गाय, मेरे फैमिली रिलेटिव्स और जितने भी फैमिली फ्रेंड हो सबने बोला था मैकेनिकल हाँ, इंजीनियरिंग मत कराओ, इसको सीएससी में डालो, इसको सीएससी में डालो। एग्जैक्टली। एंड आई एम प्राउडेस्ट ऑफ द डिसीजन कि आई फॉट ओवर इट, आई नेवर टुक इट। मुझे जो हाँ, करना था आई टुक इट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाज द बेस्ट डिसीजन, मतलब इसके लिए मैंने फाइट किया। तो यू तो आई कैन इमेजिन कि एटलीस्ट गुड दैट योर पेरेंट्स सपोर्टेड दैट डिसीजन। बट हाँ ना, देन कमिंग टू वीआईटी एज यू सेड कि फर्स्ट ईयर से ही पता था कि हाँ ऐसा ड्रीम था कि नासा जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगले 4 साल व्हाट ऑल डिड यू डू, हाउ डिड यू मेक योर प्रोफाइल बेसिकली सो दैट यू एंड अप विद अ वेरी गुड एडमिशन? हाँ। पहले तो लाइक यू नो मी एंड एवरीवन हु नोज मी, मेरा डिल्यूजन फैक्टर बहुत हाई है। तो घर में इतने पैसे कभी थे ही नहीं, कैसे 10,000 पर एप्लीकेशन देंगे और अप्लाई करेंगे। बट डिल्यूजन फैक्टर बहुत हाई था। तो मैंने ऐसे फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर लिया कि हाँ ये तो कॉलेज करना है, यहाँ थोड़ी रहना है मेरे को, तो यूएस चले जाऊंगी फिर नासा में जॉब हो जाएगी, बस बस यही। तो मैंने फिगर, मेरे को ये चीज पता थी कि नासा में यू कांट वर्क एज एन इंडियन सिटीजन बिकॉज ऑफ आईटार। But I saw this Indian guy, right? Remember, he's an Indian guy. So I tried to figure out how. So basically, in Jet Propulsion's lab, if you're working on the research side, और robotics ITAR के अंदर नहीं आता है, robotics research ITAR के अंदर नहीं आता, तो I figured कि वो वाला एक niche पकड़ सकते हैं जिसमें कि I can get employed by NASA. कैन It's यू फर्स्ट really ऑफ ऑल difficult. क्लैरिफाई व्हाट इज आईटार, थोड़ा बेसिक इन्फो ऑन दैट? तो बेसिकली जो भी तुम रॉकेट रिसर्च करते हो या मिसाइल से रिलेटेड रिसर्च करते हो, वो अपनी कंट्री का स्पेसिफिक होता है। मतलब डीआरडीओ में भी या इसरो में भी हम लोग अमेरिका के किसी इंसान को हायर नहीं करेंगे टू प्रोटेक्ट आर रिसर्च सीक्रेट्स, आर आईपी। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे जैसे स्पेस एक्स हो गई या जो भी एरोस्पेस की कंपनीज हैं, ब्लू ऑरिजिन, नॉर्थरॉप ग्रामन, मोस्ट जॉब्स, ऑलमोस्ट ऑल जॉब्स, दे नीड सर्टेन काइंड ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस। एंड उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यू नीड टू बी अ यूएस पर्सन। यूएस पर्सन के अंदर पीपल विथ पीआर एंड पीपल हु हैव टेकन असाइलम इन दिस कंट्री एंड पीपल हु आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वही लोग क्वालिफाइड होते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर तुम बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड हो तो इवन स्पेसएक्स भी ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं भाई, अमेरिका में तो और कोई हेल्प ही नहीं कर सकता, यही बंदा मिला, हमें इसी को हायर करना पड़ेगा। तो रिसर्च में तुम्हारे लिए ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है। ओह कूल। तो बहुत ही चांसेस कम, मतलब इतने चांसेस कम है ना भैया कि ये जे एन टाटा फेलोशिप होती है, तो मेरा कॉर्नेल भी हुआ था ना, तो जे एन टाटा फेलोशिप ना वेंट टिल द फाइनल राउंड, दे हैड लाइक 2 written exams and then an interview. I qualified everything. उनके इंटरव्यू में द पर्सन वाज आस्किंग मी कि अच्छा यूएस जाके क्या प्लान्स है। आई वाज लाइक आई वर्क फॉर जेपीएल, आई वांट टू वर्क फॉर जेपीएल। And he was like fighting with me. Do you know how thin chances are to get into JPL? Like how do, and then they didn't give me J and Tata fellowship, which is so sad. And I ended up getting into JPL. So the joke is on him. But yeah, मतलब बहुत ही मतलब delusion बहुत आया था, मतलब बहुत ही कम
लोग, मतलब एक बंदा ही दिखा था, और ऐसे हैं बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत मतलब उन लोगों को भी जिनको मिला है ना फुल टाइम पोजीशन, मतलब इतना लक और चांस। लेकिन वो सब कभी मैंने सोचा ही नहीं कि लक और चांस है, नहीं सोचना चाहिए, डर लगता है ज्यादा और काम होता नहीं है तो सोचना ही नहीं चाहिए। तो हाँ, मैंने मतलब यही देखा था। क्वेश्चन क्या था बाय द वे? हाँ, कि 4 साल वीआईटी में ऐसा क्या किया तो। हाँ। अ, तो फर्स्ट ईयर में क्या किया, मैं हर जगह, जो भी मेरे को जानता है, एक दो दिन भी अगर तुम जानोगे तो यू विल नो कि आई लव स्पेस। तो सबको मैं, तो पहले दिन, आई डोंट नो इफ दैट हैपेंड टू योर बैच, बट हमारे बैच में सबको प्रॉक्टर्स से मिलाया गया था। हाँ हाँ सेम। तो मैंने, अब मैं अपने प्रॉक्टर से मिली और 15 मिनट में मैंने उसको ये बताया कि मैंने ये नासा के लिए कंपटीशन किया था, मेरा स्पेस में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। वेरी देर आर सम टाइप ए इंडिविजुअल्स लाइक यू आर, कि मतलब ऐसे काम बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से होगा, काम करना है। तो मैंने उनको बताया ना, तो ही टुक इट सीरियसली। मतलब ऐसा नहीं, अब नो मत बोलो, आई नो यू हाँ वांट टू बी सो हाँ सैड। ठीक है ठीक है। तो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब ऐसा कोई और प्रोफेसर हो सकता था जिसको मैंने ये बताया भी रहता तो ही वुडंट हैव टेकन इट सीरियसली, बट आई गॉट अ प्रॉक्टर who really cared. And ऐसे 2-3 वीक ही हुए थे वीआईटी में, so he messaged me and he was like कि hello, there is this conference coming up in Malaysia. You said you have interest in aerospace. It's an aerospace conference. Do you want to publish in it? अब मेरे को रिसर्च पेपर के बारे में क्या ही पता था। तो आई वेंट टू मीट हिम एंड ही टोल्ड मी कि देखो, दो तरीके के रिसर्च पेपर्स होते हैं, एक रिव्यू पेपर होता है, एक रिसर्च पेपर होता है। रिसर्च पेपर बहुत रिसर्च करके करते हैं। रिव्यू पेपर यू कैन रीड आर्टिकल्स, टॉक टू पीपल, सी देयर रिसर्च एंड राइट अबाउट इट इन अ कंपाइल्ड वे, लाइक सर्वे आर्टिकल या रिसर्च पेपर पब्लिश हो सकता है। तो मैंने क्या करा कि उसी वीक सेड्स का एक कॉन्फ्रेंस था, जिसमें कि पूरे ऐसे स्टार्टअप लीडर्स आए थे, जो सीईओज हैं बहुत बड़े बड़े, लाइक स्टार्ट, लाइक ये मिडिल भी या बहुत ही नए। तो उसमें एक कंपनी आई थी, नोपो नैनोटेक, जो कि कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में बात कर रही थी। और कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में मेरे को पहले से भी पता था, क्योंकि मैंने ये नासा वाला ना, मुझे स्पेस के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं तो आपने कॉम्पोजिट के बारे में पढ़ा है, और कार्बन नैनो ट्यूब्स का तो नाम सुना है। तो मेरे को पता था। फिर मैंने उसके भी कंपनी के बारे में देखा, फिर मैंने उसको रीच आउट करा कि ओ आई वांट टू स्केड्यूल अ कॉल विथ यू, एंड देन आई टोल्ड हिम अबाउट ऑल दिस। तो आई गॉट सम रिसोर्सेज फ्रॉम हिम। फिर मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स खुद से पढ़े। तो ऐसे फर्स्ट ईयर में बच्चे ऐसे बहुत ऐसे फन वन भी करते हैं, तो मैं बैठ कर वैसे पेपर पढ़ते रहती थी। एक दिन में 25-30 पेपर पढ़ती थी आफ्टर कॉलेज। लाइक आई रियली रेड अ लॉट ऑफ पेपर्स एंड देन आई वाज, मतलब अभी बेवकूफ तो नहीं है ना हम लोग, तो पढ़ेंगे तो मतलब लिख लेंगे उसके बारे में। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं रिव्यू पेपर लिखूंगी तो मैं किस बारे में लिखूंगी। तो मैंने उस प्रोफेसर को बोला कि आई वांट टू राइट अबाउट कार्बन नैनोट्यूब्स एंड इट्स स्पेस प्रोस्पेक्ट्स। तो बहुत ही से आप सिंपल चीज है, मतलब फर्स्ट ईयर का बच्चा ऐसा कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, दे वांट टू पब्लिश अ रियली क्वालिटी पेपर, तो उनको 3-4 साल लग जाता है और फिर रिजल्ट बहुत कम दिखता है। आई एम समबडी हु इज वेरी रिजल्ट ड्रिवन, तो अगर मेरे को रिजल्ट जल्दी दिखता है तो दैट गिव्स मी द मोटिवेशन टू वर्क हार्डर। तो आई फील इट गिव्स यू अ रियली गुड हेड स्टार्ट इफ यू जस्ट पब्लिश अ रिव्यू पेपर एज योर फर्स्ट पेपर, बिकॉज ऐसे पब्लिश होते हुए दिखेगा and you'll feel good about it. So then, and you will also in the process learn a lot about different kind of research papers and how a research paper is written because you have read so many. So मैंने ऐसे ही वो पेपर पढ़ा तो वो पब्लिश किया, तो ऐसे फर्स्ट क्वार्टर के एंड में ही आई वेंट टू मलेशिया एंड आई प्रेजेंटेड एंड आई वाज द यंगेस्ट प्रेजेंटर देयर। इनफैक्ट कोई पीएचडी स्टूडेंट भी नहीं आया था उस कॉन्फ्रेंस में, एवरीवन वाज अ पोस्ट डॉक। And the conference organizer came to me and he was like, "Oh, you're the youngest," and like he was interested in talking to me and stuff. ऐसा कुछ कुछ तो रिव्यू पेपर लिखा था, कुछ फाड़ नहीं लिखा था, but people get really impressed if you, and even more so if you're a woman, बिकॉज ऐसा अभी भी सोसाइटी काफी सेक्सिस्ट है, तो उनको लगता नहीं है कि औरतें कुछ कर सकती हैं। और also like some people like my professor and everyone else, like I feel like they get really happy internally and intrinsically whenever a woman is doing something nice, because a lot of people want to see women win. And it's an amazing time to be a woman right now, because matlab, a lot of people, want to promote women. And if you're a woman in mechanical engineering, you stand out. It's easier to stand out. Especially like if you're a woman in engineering, I would say it's very easy to stand out. Uh, तो मतलब ये सब हुआ। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ये किया, तो कोर्सेज बहुत इजी थे, लेकिन मेरी जीपीए बहुत हाई नहीं थी। इट वाज समथिंग इन एट्स, ओके, 8.7 जीपीए था मेरा फर्स्ट। बट
हाँ, जीपीए इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। एक ये चीज करी मैंने कि जीपीए मेंटेन करा मैंने। दूसरी चीज मैंने ये करा। तीसरा चीज मैंने आउटरीच किया था काफी अच्छा, जैसे रोबोटिक्स के लिए भी आई डिड आउटरीच सेवरल टाइम्स। And what really worked out in my favor was the outreach that I did, even in SEDS and robotics, ended up having a result. तो जिन बच्चों को मैंने सेट्स के थ्रू गाइड किया था, उन्होंने वो सेम कंपटीशन करा था जो मैंने करा था, एंड दे वन एट द इंडिया लेवल। तो लुक्स रियली गुड दैट आई कोच देम, दे वन। सेम जो लेगो माइंडस्टॉर्म वाला मैं कंपटीशन बता रही हूँ, सनबिन के बच्चों को, मैं और रोहित भैया हम लोग गए थे, मैं रोहित भैया यश, and they ended up winning as well in India. So I also kept in touch with the principals, so I knew all this, right? कि जीत रहे हैं बच्चे। तो ये सब भी था। फिर तीसरी चीज जो मैंने करी, जैसे सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स को बहुत सीरियसली लिया जो कोर्सेज मुझे पसंद थे, एंड आई कन्वर्टेड इट इनटू अ पेपर। तो मैंने शुरू से ही, मतलब मैंने हल्के में नहीं लिया कि मैं कुछ ऐसे बस करने के लिए करना है, मार्क्स के लिए करना है। मैंने शुरू से ही प्रोफेसर को भी ये बोला कि आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस, I want to publish it, and then I worked towards it, and it worked out in my favor. तो ऐसे मैंने बहुत सारे पेपर्स निकाले। ये वेरी नाइस ऑन दैट कि मतलब मैंने तो बहुत लाइटली लिया है सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट्स, खुद से अलग अगर करने तो आई नेवर रिलेटेड कि पेटेंट या पब्लिकेशन आई विल टेक इट एज अ सब्जेक्ट का Yeah. प्रोजेक्ट। बट हाँ, दैट इज गुड। आई रिमेम्बर यू ऑल्सो हैड फाइल्ड फॉर अ पेटेंट हाँ, I इन have a वीआईटी ऐसा। granted, so actually दो पैटर्न के लिए अप्लाई किया था हमने, but one got granted by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स एन इंडियन पैटर्न। तो वो बहुत ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। कोविड के टाइम में घर पे थी मैं, तो वी लाइक आई डिजाइन दिस रोबोट व्हिच वाज लाइक, एंड आई मेड अ प्रोटोटाइप एज वेल, which was non-contact everything, non-contact temperature sensing, and it had non-contact mask dispensing and non-contact sanitizer dispensing. And I was working with the dean that time, so we filed for a patent and I got it. And VIT was working towards commercializing it as well. I'm not sure where they went with it, but they were trying to do it. I wouldn't get a part of it, but yeah. गुड। हाँ, तो नाउ कम्स इन कि हाँ, अब तुझे करना था मास्टर्स के लिए अप्लाई, तो हाउ डिड यू फिल्टर आउट कॉलेजेस, व्हाट एग्जाम्स डिड यू टेक, एप्लीकेशन कैसे फॉर्म करा, हाउ डिड यू राइट इन योर एसओपी, तो उस पर थोड़ा। तो पहले जैसे डिल्यूजन क्वेश्चन बहुत हाई था, तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मतलब पैसे कहाँ से आएंगे अप्लाई करने के लिए। और कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि मतलब पैसे भी प्रॉब्लम्स हैं। तो मतलब मैं तो सोच लिया था कि करूंगी, बट पैसे तो है नहीं उतने। तो पहले तो वैसे घर से बहुत ही ज्यादा ऐसा हुआ, मतलब इनिशियली माय पेरेंट्स वर ट्राइंग टू बी सपोर्टिव, बट इट्स just so much money. We don't, my parents don't have that much money, like they don't, like even if they sell, like पहले तो हमारा घर भी नहीं था, तो कोलैटरल ही नहीं था कि मतलब लोन किस चीज पे लेंगे, ठीक है? तो इतनी खराब कंडीशन है, तो पैसे ही नहीं थे। तो अभी तो मैंने सोच लिया था पहले कि करूंगी, फिर समझ नहीं आ रहा था कैसे करूंगी। आसपास सारे फ्रेंड्स मेरे वजह से, बट दे ऑल्सो हैड मनी, सो दे वर अप्लाइंग, बट मतलब मैं तो कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट देन माय मॉम वाज लाइक इट्स फाइन, डू इट, विल मेक इट हैपन। ऐसे घर में से लड़ाई झगड़े हुए पहले, फिर उसके बाद हुआ कि अच्छा ठीक है चलो करने दो, बिकॉज आई वाज वेरी स्टबर्न विद इट। पहले तो मैंने सोचा कि ठीक है, जस्ट अप्लाई फॉर अ जॉब, सेव मनी, देन अप्लाई अगेन, इट्स ओके। But then my mom saw actually how sad I am, so she was like, "It's fine. We can use my earnings, and we can like pay it entirely and make sure that you do it." मतलब इतने खराब खराब सिचुएशन थे ना घर में। एक बार जब यूएस आना था, तो टिकट के पैसे चाहिए थे ना, तो 35,000 नहीं थे घर में। कर बुक प्राइस हाई हो जाएगा, कोविड का टाइम था ना, तो बहुत सारी चीज थी। एंड आई एम लाइक हाँ कर रही हूँ, आई वाज नॉट रिप्लाइंग टू देम बिकॉज वी डिडंट हैव द मनी टू बुक इट, इट्स जस्ट सो सैड। सो बट हाँ, बट ऐसे अभी मतलब मैं 35,000 के लिए रो रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे 2,000 की फ्लाइट टिकट नहीं करा सकते। हाँ, मैं सोच लिया था। फिर इवान भैया का पता चला, ठीक है, कि उनका यूके में हो गया एडमिशन ऐसी जगह पे। तो उन्होंने मेरे को फोन करा था, मैंने बोला भैया पैसे कहाँ से आए, मतलब पैसे कैसे आए? तो कह रहे हैं देख अप्लाई कर दे, पैसों का हो जाता है, सबका हो जाता है, टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ हो जाएगा। नॉन कोलैटरल लोन्स होते हैं, ये होता है वो होता है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। And then he gave me contact number of the girl who helped him apply. So like कुछ ऐसे काउंसलर थे, फ्री की काउंसलर थे, उससे बात करा तो she saw my profile and she was recommending me Oxford, Cambridge, all these top places. In fact, like she sent me
एम्बिशियस एंड ही सेंड मी एमआईटी, कैलटेक, स्टैनफोर्ड, ऐसा लिस्ट बना के उसने दिया। तो मेरे को लगा अच्छा ये सब ऐसे रीच है ऐसा। और मैंने सनिल भैया का भी देखा था, तो सनिल भैया से भी हैड कैप्टन टच कि ऐसे सीएमयू चलेगा सनिल भैया, तो मैंने उनका भी देखा था कैसे जीआरई वगैरह दिया है, जीआरई में बहुत फाड़ नंबर आए हैं। ही टोल्ड मी ही हैड एन इमेज प्रोसेसिंग कॉन्फ्रेंस पेपर, तो उस टाइम मैंने सीखा था कि पेपर पब्लिश कर लो बहुत सारे तो सीएमयू लग जाता है। बट सीएमयू जाने के पैसे नहीं थे भाई, एंड नॉन कोलैटरल लोन भी कितनी लिमिट होती है तो नहीं जा पाती, मैं सीएमयू तो अप्लाई नहीं किया। बट एनीवे, देवान भैया के ये जो बात थी बस एक लाइन पैसों का हो जाता, दैट गिव मी लॉट ऑफ रीअश्योरेंस एंड आई थॉट ओके आई अप्लाई। सो आई एक्चुअली टुक माई जीआरई 2 weeks बिफोर। जैसे दिसंबर में, 1 दिसंबर मेरी डेडलाइन थी, मैंने 7 नवंबर को टोफल दिया था। इतना लेट दिया था क्योंकि मैंने मतलब सोचा नहीं था कि मतलब मैं इस साल जा भी रही हूँ ऐसा। और मैंने ऐसे बैकअप के लिए इन्फोसिस की जॉब ले ली थी क्योंकि वीआईटी ओनली लेट्स यू हैव दिस, तो मैंने एक ही इंटरव्यू दिया, एक ही जॉब ली थी। My parents were so concerned that I've taken a 3 lakh rupee ka job, and as a girl with a good GPA, I had a lot of advantages in VIT, right? Because I'm pretty confident I could have gotten a really good job, like one of the best jobs that VIT had to offer. So uh, yeah, it was Ivan Bhaiya's this thing, and I really owe it to him. So I just applied, and uh, मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी ना देखा ना सुना कि किसी के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल ही कुछ भरोसा नहीं था। मेरा पहला एडमिट आया एनवाईयू, which was my safety. My dad got so happy. He called all the relatives. He distributed sweets everyone everywhere in my neighborhood. And I was like, you know, this is my safety school, right? So my dad was like, I'll tell you a truth. I have never seen anyone go to America. So I didn't think that you will go. I didn't think you'll get in. I didn't know. So I'm very relieved and happy that you got into one place. And the admit came with a good scholarship as well. So it felt like कि मतलब चलो मैनेजेबल है कि अगर लोन थोड़ा सा ले लेंगे और पैसे थोड़े माफ हो जाएंगे तो मैं रह लूंगी पढ़ लूंगी, तो इसलिए भी मेरे पापा थोड़े खुश थे। फिर उसके बाद तो मतलब हर दिन ही ऑलमोस्ट एडमिट आया, फिर यूसीएलए एक बार अपना आया। लिस्ट बता दे पूरा कन्वर्ट्स का, मतलब पीपल हाँ, उनका दिमाग फट जाएगा इतना कि इतने तो सारे बड़े बड़े कन्वर्ट्स थे। I got into Cornell, Columbia, UCLA, Purdue, and NYU. I got into Cranfield. I got into NTNU, which is again a university that's entirely free to study in. Uh, UCLA and Purdue, if you get an admit, there is a very high chances of you getting funding. Like Purdue में तो funding के साथ आती है admit, and UCLA की जो admit होती है बहुत मतलब high chances होते हैं कि funding लग जाएगी। वो लिख के भी देते हैं कि like you, but yeah, it was actually crazy because I don't think anyone from ARA got into an Ivy League. So it was, I cried. In fact, like I cried the most when I got NYU because probably some part of me also didn't trust that I can potentially go and study in such big universities. So I was very happy. And then almost wherever I applied, I got in, except one place that waitlisted me. But अभी notable alumni में भी तो किसी को डालना होता है तो किसको ही डालेंगे बेचारे। But यही हुआ, and then uh, yeah, that's हाँ, it. तो देन हाउ डिड यू फाइनलाइज यूसीएलए? मतलब मैंने सोचा कॉर्नेल का भी फीस कम है, इतना फीस है जितना नॉन कोलैटरल लोन मिलता है। और एक माधव भैया थे सेड्स के जिनका स्टैनफोर्ड लगा था, तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने एक्चुअली यूएस में ही इंटर्नशिप करी हुई थी, तो उनको थोड़ा यूएस का आइडिया था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि देख कॉर्नेल में भी फंडिंग लग जाती है, कोशिश करोगे तो, मतलब मुश्किल होता है लेकिन लग जाती है। तो उसी डिल्यूजन फैक्टर अगेन 100 लगती नहीं है वैसे मैकेनिकल से, बट ठीक है, मैंने सोचा कि हाँ लग जाएगी। मैंने बहुत बच्चों से बात किया क्या होता है ये वो, तो मैंने सोचा कॉर्नेल जाएंगे। फिर एक वीआईटी का फ्रेंड था निकुंज, उसका यूसीएलए लगा था, दो ही बच्चों का लगा था यूसीएलए, उसका और मेरा। और मतलब ऐसे सर्च करोगे ना तो वीआईटी से थे ही नहीं, एलुमनाइज भी नहीं थे उस टाइम यूसीएलए में। तो उसने मेरे को बोला कि तेरे को ये पता है कि यूसीएलए में फंडिंग मिलती है। फिर उसने मेरे को बताया कि मतलब ऐसे फंडिंग मिलती है टीएशिप की, बहुत हाई टीएशिप की, और मतलब मिल जाएगी, मतलब हम ऐसे कोशिश करेंगे तो उसने पूरा कन्विंस किया कि देख, और उसने एक हाउसिंग बताई मेरे को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन कोऑपरेटिव हाउसिंग थी। उसमें क्या था कि खुद का खाना खुद बनाओ, और मतलब हफ्ते में 4 घंटा काम कराएंगे वो आपसे। उसके बाद खाना मिलेगा, रहना पानी वानी सब फ्री है। मतलब यूएस में तो हर चीज का पैसा देना पड़ता है, वहां पे सब फ्री था। बस रूम शेयरिंग में रहना पड़ेगा और वॉशरूम कॉमन रहेगा, 7 लोगों के बीच में एक वॉशरूम शेयर करना पड़ेगा।
तो मुझे तो मतलब बस अपने ऊपर छत से मतलब था कि मैं कौन सा फैंसी जगह में पैदा हुई हूँ। लाइक मेरा तो आधा का घर मिट्टी का था, आधा घर मेरा मिट्टी का है और अभी भी था। मतलब इस साल मम्मी पापा को नया घर मिला है, तो उसके पहले मतलब मेरे मम्मी पापा अभी तक भी मिट्टी के घर में रहते थे। मतलब जमीन मिट्टी का था। तो मेरे को तो बहुत फैंसी अपब्रिंगिंग की जरूरत थी नहीं, तो मेरे को बस ऐसा था कि मतलब हाँ कुछ यूएस में रहने का सस्ता से सस्ता मिल जाए। तो मेरे को बहुत सस्ता $600 का वेस्ट एलए में घर मिल गया, विच इज अनफैथमेबल बिकॉज when I had funding, I stayed in a place which was like just one studio apartment which was around 1800. तो एक रूम का actually उस एरिया में you have to pay 1800. Even that apartment was a steal. Like even if you're living in 2B, it's 1800 for a room, and I had gotten something for $600, so it was a steal. So he told me about this, and then आई ऑल्सो फेल्ट कि मतलब ऐसे एले वाले है, और मैंने ये भी सोचा कि ये विसिनिटी है सारे एरोस्पेस कंपनी से। जेपीएल एलए में है, कैलटेक एलए में है। कैलटेक मतलब मेरी, मैं बचपन से बोलती हूँ कि मेरा ड्रीम सिटी लाइक पैसाडीना है, बिकॉज आई कैन टीच एट कैलटेक। आई वांट टू बी अ प्रोफेसर, सो आई कैन टीच एट कैलटेक एंड आई कैन वर्क एट जेपीएल। सो ये सब देख के मेरे को लगा कि मतलब प्रॉक्सिमिटी है। फिर मैंने सर्च किया कि जेपीएल में सबसे ज्यादा हायरिंग कहाँ से होती है, तो आया यूसीएलए, कैलटेक एंड यूएससी। तो मेरे को वैसे भी लगा कि विसिनिटी से फर्क पड़ेगा। तो मतलब ये लिंक्डइन पे ही दिख जाता है ये डेटा कि मतलब कौन सी कंपनी में किस यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा बच्चे हैं। तो ऐसे जेपीएल इंसेंटिव था, तो मैंने यूसीएलए चुना, और मैंने थोड़े बहुत सीनियर्स से भी बात करा, तो सबने बहुत रीअश्योर किया कि हाँ ऐसा है, इतने में हो जाता है। ऐसे एक वीआईटी के और भैया थे, रोहन भैया। उनका एक साल पहले सीएस में हुआ था, वही थे, एक ही वही सीनियर थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला यूसीएलए के बारे में। आ, फिर और एक चीज मेरे को अच्छा लगा कि बहुत सारे कॉलेजेस में क्रेडिट सिस्टम होता है कि तुम जितना कोर्स लोगे उसका तुम कोर्स के हिसाब से पैसा लोगे। यूसीएलए में ऐसा कुछ नहीं था। आ, उनका एक ईयरली फीस था, उसमें तुम जितने मन उतने कोर्सेज ले सकते हो। जो डिपार्ट अगर एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इफ आई वांटेड टू टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमबीए कोर्सेज, इट वाज पॉसिबल। बच्चों ने करा है, तो तुम माइनर ले सकते हो काफी इजीली, तुमको अलग से पैसे नहीं भरने किसी कोर्स के। फिर मैंने उनका कोर्स लिस्ट देखा था, उसमें बहुत सारे बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स थे रोबोटिक्स के रिलेटेड जो मेरे को करने थे। काफी एक्सटेंसिव लिस्ट थी। तो ये सब देख करके सबसे ल्योरिंग फैक्टर फंडिंग वाला था। और बहुत सारे अच्छे बच्चे भी मिल गए थे यूसीएलए के, जिनसे काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो और कॉर्नेल मतलब में चांसेस नहीं थे फंडिंग लगने के, और मेरे दो टॉप यूनिवर्सिटीज कॉर्नेल और यूसीएलए था। और यूसीएलए में अंडी रन भी होता है, तो काफी फन स्कूल भी है। नाइस। तो कमिंग डीप डाइविंग मोर ऑन द पॉइंट ऑफ फाइनेंसेस, तो आई सॉ तूने एक बार लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था रिगार्डिंग कि हाउ डिड यू मैनेज योर फाइनेंसेस। तो एक बार थोड़ा ब्रीफ ऑन दैट कि अगर जिस पे इतना पैसा नहीं है, जो बड़ी मुश्किल से फंडिंग लेके गया है, वहां जाके कैसे मैनेज करेंगे। हाँ तो मतलब एक दो चीजें कर सकते हैं, जैसे 2B रूम ले लो और एक रूम में दो लोगों के साथ शेयरिंग कर लो, या उससे भी अच्छा है 3B ले लो, और भी सस्ता पड़ता है। एक रूम दो लोगों में शेयर कर लो, बड़ी से बड़ी सिटी में 500 पर पर्सन में हो जाएगा। एक अडेप्टेबिलिटी चाहिए कि तुम रह लो। मतलब एलए, वेस्ट एलए बहुत एक्सपेंसिव जगह है, एलए का सबसे एक्सपेंसिव एरिया। लाइक यूसीएलए के इस साइड पे बेल एयर है, दूसरे साइड पे बेवर्ली हिल्स है। तो इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव एरिया। वेस्ट एलए इज द लाइक filthy expensive area in the LA region। लेकिन मतलब वहां भी अगर तुम थ्री बी ले रहे हो, 6 जन मिलके ले रहे हो घर, तो एक इंसान का $500 में घर तो हो जाएगा। उसके ऊपर खाने का खर्चा एक्चुअली उतना नहीं है। आराम से कम में अच्छा खा सकते हो, चावल दाल, अच्छा सब्जी वब्जी। इनफैक्ट अभी भी मैं बहुत फैंसी खाना खाती हूँ, बहुत हेल्दी डाइट, बहुत ही बहुत न्यूट्रिशियस डाइट। इनफैक्ट मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीद रही हूँ, तब भी इतना खर्चा नहीं है। तो खाना उतना मुश्किल नहीं है अगर खुद से कुक कर रहे हो तो, जो कि सबको करना है यहाँ पे। मतलब स्टूडेंट लाइफ में तो डेफिनेटली करना है, आगे यू कैन कीप हाउस हेल्प। बट हाँ वो चीज है। तो ऐसे बच्चे मैनेज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कर सकते हो, जैसे आज लकी ने पोस्ट किया था कि उसने आरए करा। आरए एक्चुअली काफी competitive होता है, बट अगर तुम्हारा स्कूल अलाउ करता है कि तुम आरए करो, तो रिसर्च असिस्टेंटशिप नहीं, एक रेसिडेंसी के लिए होता है। जैसे अंडरग्रेड्स बहुत पार्टी करते हैं, ड्रग्स लाते हैं, तो उसके लिए दे कीप एन आरए जिसमें तुमको एक पूरा रूम फ्री मिलता है, और खाना भी तुम खा सकते हो डॉर्म में ही। और उससे तुम्हारा एटलीस्ट रहने का तो हो गया।
उसके ऊपर खर्चे के लिए तुम एक टीए, टीचिंग असिस्टेंटशिप की पोजीशन मोस्ट यूनिवर्सिटी में मिल जाती है। यूसीएलए जैसी यूनिवर्सिटीज में ये पोजीशंस डिफिकल्ट होती हैं क्योंकि इट कम्स विथ ट्यूशन फंडिंग। लेकिन बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूशंस में इट इज जस्ट एन आवरली पे, तो वो वाला मिलना उतना मुश्किल नहीं होता है। तो वैसा अगर तुम टीए फंडिंग लेते हो तो उससे इनफ पैसे आ जाते हैं कि तुम्हारा रहने खाने का खर्चा निकल जाएगा, तो रहना खाना तुम ऐसे मैनेज कर सकते हो। अगर बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मतलब मेरे ऐसे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिनके मतलब मम्मी पापा, तीसरी चीज बहुत सारे बच्चों को, जैसे मेरा एक दोस्त है वो मेरे से भी गरीब फैमिली से यूसीएलए में पढ़ा है, हैदराबाद, मतलब आंध्रा के किसी गांव से है। आ, उसने 8 साल काम किया इंडिया में, तब उसके पैसे बने कि वो यूएस आया। अभी यूएस आके भी उस पर बहुत प्रेशर है, वो पहले वैसे अपनी बहन की शादी के लिए 30 लाख रुपए जोड़ रहा है क्योंकि उसको दहेज देना है 30 लाख का। ही इज लाइक कि आप कैलकुलेटेड, आई नीड 30 लाख रुपीज। सो ही इज सेविंग, लाइक ही सेव्ड उतना पहले कि बहन की शादी करानी है। और एक और चीज कर सकते हैं जो मेरे को नहीं पता थी, इंटर्नशिप करो आके, समर में इंटर्नशिप पे फोकस करो। इंटर्नशिप अगर अच्छी इंटर्नशिप, कोई भी इंटर्नशिप है, 7,000 से $11,000 तक पैसे मिल सकते हैं तुमको। मैकेनिकल को भी मतलब एकदम ही खराब कंपनी में भी लग गया तो $5,000 मंथली तुमको इंटर्नशिप में मिल सकता है। या कुछ भी नहीं मिला तो 4-3 हजार डॉलर तो कोई भी देगा, उतना तो रिसर्च पोजीशन में मिलता है, तो भी तुम कुछ बचा सकते हो या 3-4 महीने का अपना खर्चा निकाल सकते हो। अगर बहुत अच्छी इंटर्नशिप लग जाती है तो उससे भी थोड़ा ट्यूशन के पैसे बन जाते हैं। जैसे अगर मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आ रहे हो तो $11,000, अमेजोन भी $11,000 देती है इंटर्न्स को। टैक्स के बाद भी क्या $8,000 आता होगा हाथ में, देन यू कैन सेव। तो एक इंटर्नशिप कर सकते हैं। दूसरी चीज कर सकते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में ऑप्शन होता है कि तुम जल्दी ग्रेजुएट कर जाओ। तो ट्राई करो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो ग्रेजुएशन की है वो तुम बहुत जल्दी मीट करो। तो एक ये चीज होती है। फिर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लाइक पर्ड्यू है, यूआईयूसी है, यूसीएलए है, एमआईटी है। एट द टॉप ऑफ माई हेड, these places you can get a teaching assistantship or a research assistantship that also funds your tuition and your medical insurance। तो एक ये चीज होती है, ये मतलब कुछ वेज हैं जिससे यू कैन मैनेज योर फंडिंग। सो टू Great. sum it up, non-collateral loan is always an option. It's high interest though, so be very very careful about what your risk tolerance is। क्योंकि ऐसा भी होता है कि a lot of people take really hefty loans, they come here and then they're so tensed that they can't work, because if you're so tensed about money, you can't work, right? You won't have the energy to work because you're always so tense. Second thing could be applying for TARA positions. Third thing could be that a residence thing that Lucky did, an RA position which gives you a free housing in the university housing facility, and other thing is to really get an internship। और ऐसा ऐसा भी है, मतलब ऐसे ऐसा नहीं कि बस तुम समर में इंटर्नशिप कर सकते हो। जब 1 साल रह गए यहाँ पे तो तुम पूरे साल भर के लिए भी इंटर्नशिप कर सकते हो। जैसे मेरी जो नासा वाली इंटर्नशिप थी वो ईयर लॉन्ग इंटर्नशिप थी। कंडीशन खाली इतनी है कि अगर फुल टाइम इंटर्नशिप कर रहे हो, मतलब 40 घंटे पर आवर काम कर रहे, पर वीक काम कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी तुमको परमिशन देगी। और उसके बाद तुम केवल 11 महीने तक के लिए ही 40 घंटा पर आवर काम कर सकते हो, अगर तुमको अपना ओपीटी यूज करना है तो, जो कि करना है। तो उसको सीपीटी वीजा बोलते हैं, मतलब सीपीटी I-20 होता है जो कि तुम यूज करते हो इंटर्नशिप करने के लिए। और इंटर्नशिप में काफी अच्छी, मतलब ऑब्वियसली इंडस्ट्री विल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, सो दैट्स एन एडवांटेज। तो इंटर्नशिप कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि मतलब ऐसे कॉलेजेस में गए, सीएमयू या यू मिशिगन, जिसमें फीस थोड़ी हाई होती है, लेकिन उनको फर्स्ट ईयर में कोई फंडिंग नहीं मिली, लेकिन सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा उन्होंने रिसर्च लैब्स में वॉलंटरली फ्री में काम करा और बहुत अच्छा काम किया। और सेकंड ईयर में प्रोफेसर जो था लैब इनका इंचार्ज, वो मान गया कि मैं तुमको फंडिंग दूंगा। ऐसा 2-3 दोस्तों के साथ हुआ है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन थिंग्स कैन गो रियली रॉन्ग ऑल्सो, तो लाइक यू हैव टू थिंक। तो नाउ कमिंग ऑन द मेन पार्ट कि नासा कैसे ज्वाइन किया। अपना बचपन का ड्रीम ऐसा क्रेजी अनअचीवेबल एकदम, मतलब कोई सोचता भी नहीं है कि नासा में जाके काम कर पाएंगे। तो हाउ डिड यू अचीव दैट फाइनली एंड कैसा था एक्सपीरियंस? तो कैसे ज्वाइन किया, बहुत कोशिश करी। पहले तो पोर्टल से बहुत अप्लाई करा, फिर उसके बाद पोर्टल से अप्लाई करा, देन आई थॉट कि यूसीएलए में है, यूसीएलए में जो एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर थे उनके कॉन्टैक्ट्स होंगे, ये जो भी, मतलब सारे ऐसे। मेरी आदत है कोई भी क्लास होता है उसमें मैं फर्स्ट सीट पे बैठती हूँ, आई इंटरैक्ट विद प्रोफेसर्स अ लॉट। So I interacted with my professors a lot, and then I asked them, "Do you have any contacts? I really want to work for NASA. It's my like life stream and this that."
And because I was performing really well in my astronomy and my astrophysics classes, and my control system professor at UCLA was also super impressed because I used to interact a lot in class. So they all gave me some contacts and they all recommended me. बट वैसे मेरे को इंटरव्यूज बहुत मिले और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यू मिले जो कि मतलब वैसे 3-4 प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लीड रह चुके हैं या भी हैं. Like there was this one guy, he called me up and he was like, oh, I got your this from your this professor, and if you are this professor student, like what do you want? Do you want an internship? Do you want a full-time job? And then he enlisted the projects कि मतलब ये सारे projects है किस पे मन है काम करने का. Okay, he was talking to me like that. Okay, he's a really big shot person. And then as soon as he heard that I'm from India, he was like, अच्छा फिर मैं देखता हूँ and all this. And ऐसे बहुत लोगों ने ghost करा. Actually, like तीन तो okay, they were interested. बस ये जान के कि I'm from India. But I found someone eventually by applying a lot and talking to like I don't know, I networked with like more than 1,000 people. I met someone who was very very nice. My mentor and my PI at JPL. I don't want to name like give his name because I don't want a lot of people messaging him. But he really like those kind of people जैसे मेरा इंडिया के जो मेरे प्रोफेसर थे like type A who work really hard, and if you tell them something and they say something, they really take it very seriously. So he said, yeah, I'll give you an internship. And it took like 3-4 months to figure out a way to fund me. He's like, I'll give you an internship, but I don't want to, like, I'll pay you. I don't want you to work for me for free. Because मैं तो ऐसे बोल रही थी कि मेरे को काम दे दो, मैं तो फ्री में करूंगी काम, मेरे को तो ऐसा, मैं सबको ऐसा बोलते. He was like, no, I'm not going to like not pay you. I have to figure out a way to pay you. And then उनका, so he was like, I'll hire you, but I'll see. And then tried to figure out a way. And then he figured out a way to get clearance, long process. And then he figured out a way to give me funding. And then he gave me funding and hired me properly. And then he kept extending my funding for a year because he was an amazing guy like that. So, good guy. वेरी मतलब ऐसे सब आई नेवर थॉट कि प्रोफेसर्स को रीच आउट करके यू कैन लैंड अप एन इंटर्नशिप देयर. तो बहुत ही Yeah, but यूनिक I बात है. actually in the end did not get it through a professor. It was through the networking I did. But that was definitely an idea I had. मतलब प्रोफेसर्स क्योंकि रिसर्च करते हैं जेपीएल के साथ बहुत ज्यादा, तो उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सारे प्रोफेसर्स के होते हैं यूसीएल में, कोई ना कोई तो जानते हैं वो जेपीएल में. तो ऐसा मतलब था. बट प्रोफेसर्स के थ्रू नहीं मिला मेरे को इवेंचुअली बिकॉज सबने ऐसा बोला वो इंडियन है. बट आई कॉन्टैक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल, सो समथिंग वंस वर्कड आउट फॉर मी. बट या आई नेटवर्कड. तो how was finally the experience of working at NASA? मतलब I know you have your NDAs and all, you can't get into the technical details, but overall कैसा था? Was everyone welcoming to an Indian girl? कैसा background था? Tell us more about it. So it can be intimidating to work there, especially for somebody like me, right? It's really intimidating because the team I worked in, there were no women. It was also my first proper working in like experience because I never had any. So there were no women. My PI was very encouraging, but it was really intimidating to work with him because he finished his PhD in 2.5 years, got the best thesis award from my university, became a notable alumni of my university, got the award for that as well. So, and he worked with the biggest name in his field. So he was the it guy. And he is like, how this is mechanical, maybe bahut bari, like you have to like look at things, right? That guy was an expert in aerospace, mechanical, even in electrical engineering. Everyone had like 20 years of experience in their field. और मैं तो ऐसे शुरू कर रही थी, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था जिस डिवीजन में मैं थी. So it was really intimidating, but I learned a lot. And more than that, I got a lot of really, really cool opportunities. Like I went to places where I know a lot of Indians have not been. I worked in different NASA facilities. I worked in three during my time there, which was something I hadn't imagined. So yeah, that was I met really cool people. Like ऐसे ऐसे लोगों से मिली मैं who were like in as I met a Nobel Prize winner as well. But I also during my time there, I was at one time working with people who were in running for Nobel Prize for physics, which was crazy. So yeah. Damn. हाँ. So coming next to मतलब तूने तो internship you went through like reaching out to people randomly through LinkedIn, through professors reaching out to people.
tips for people who are looking for internship, मतलब जो यूएस में मास्टर्स कर रहे हैं, they now want to apply for internships, how can they go about it, how to build a profile for that to get a to land up with a good internship. So something that really works really well here, and something that is very respectful here, is an industrial experience. So what people really care about here is if you have worked in a similar industry. तो बहुत सारी चीजें मेरे लिए नासा का भी इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, 2 इंटरव्यू हुए थे बिफोर द पीआई साइड, ओके। सो बहुत सारे मैचिंग पॉइंट्स थे, जैसे एक टाइम के लिए आई वाज वर्किंग विद दिस सैटेलाइट टीम एट यूसीएलए, तो वो बहुत ही रेलेवेंट एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कीमत है रेलेवेंस एक्सपीरियंस की और बिग ब्रांड टैग्स की। तो ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ऑब्सक्योर स्टार्टअप में अगर इंडिया में काम करा हुआ है तो दैट वुड मीन समथिंग बिग, लेकिन अगर मान लो आपने किसी बड़े बड़े कंपनी में काम करा है जो एमएनसी है, वेल नोन है, और आपने 2 साल का एक्सपीरियंस वहां से उठाया हुआ है, तो दैट विल डेफिनेटली ऑलरेडी पुट यू अहेड इन द लाइन फॉर एन इंटर्नशिप सर्च। क्योंकि कोई भी कुछ भी बोले कि अपना रेज्यूमे एटीएस के लिए ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरा रेज्यूमे सीवी था, 2 पेज का सीवी था। सबने मेरे को बोला 1 पेज का बनाओ। छोड़ो, मेरा जो बॉयफ्रेंड है, he has worked for Google, he has worked for Intel Labs and AMD at one point, he was also a Dadwise fellow। उसने भी मतलब 2 पेज का ही बनाया है, और सब इतना बोलते हैं कि 1 पेज का बनाओ, ये ऐसे लिखो वैसे लिखो। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा था, मैंने 2 पेज का बनाया था। मैंने जितनी चीजें मेरे को लिखनी थी सब अच्छे से लिखा था, and I my resume got shortlisted everywhere, and in fact I didn't even have to apply. Like, there were really big companies, a certain really big company that starts with T, a certain really big company that starts with A, they reached out to me for an interview without me ever applying. So I feel big brand tag on your resume matters the most, relevant experience matters the most, and उसके बाद डिपेंड करता है किस टाइप का रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। आने से भी पहले इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। मतलब इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यूज क्या होता है इंटरनेट में। ये मेरे को नहीं पता था, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मेरे को पता चला कि अरे बच्चों को तो ही पता था। बच्चों मतलब इंडिया से ही बच्चे अप्लाई करके आते हैं यहाँ पे, क्योंकि समर इंटर्नशिप के लिए सितंबर से एप्लीकेशन खुल जाते हैं। तो एज सून एज यू कम यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग। Some people are applying from India itself before coming, so that's a recommendation। ऐसे internship के लिए you have to apply। दूसरी चीज यूएस में अभी बहुत ज्यादा मैटर करती है नेटवर्किंग। सो बिना रेफरल के तो कभी अप्लाई मत करो। इट्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग एवरीवन्स टाइम, नो वन इज इवन गोइंग टू लुक एट इट। आजकल रेफरल ऑल्सो डज नॉट होल्ड सो मच वैल्यू। It's still good. Having a referral is still good, but other thing that you can have is you should talk to hiring managers. So let's say I'm targeting a company T. Okay, what I'm gonna go and do is I'll see senior mechanical engineers, staff mechanical engineer on LinkedIn. I'll add them. I'll add a lot of such engineers, and a lot of them post about openings in their team. Even if they are not, they don't have an opening in their team. If you already have the first two elements, like relevant experience and a big brand tag on your resume, you can reach out to them and they'll listen to you. They'll take you seriously. They'll reply. To get the reply, you have to have those things. They won't reply to just a student. If you are going to MIT, they will. So it depends. थोड़ा बहुत ब्रांड टैग होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यू रीच आउट टू पीपल, और पीपल दीज हायरिंग मैनेजर्स, इफ दे हैव अ नीड दे कैन स्टार्ट एन ओपनिंग फॉर यू एंड इंटरव्यू यू। सो दे हैव सो मच इन्फ्लुएंस। तो यू हैव टू डू दीज थिंग्स। कनेक्शन मैटर्स। प्रोफेसर्स को जरूर पूछ लो, बहुत सारे प्रोफेसर्स के इंडस्ट्रियल कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिसमें वो तुमको कुछ दिला सकते हैं। इंटर्नशिप मिल जाती है तो यूएस का एक एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इंटर्नशिप को एक्सटेंड कर सकते हो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो वो कर लो। जितना लंबा एक्सपीरियंस है उतनी चीजें तुम लिख पाओगे, उतनी चीजों के बारे में तुम बात कर पाओगे। और यहाँ पे हैंड, जैसे मैकेनिकल के लिए अप्लाई करें ना, सबसे बड़ी चीज देखते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो अगर किसी ने जैसे हमने कॉम्बैट रोबोटिक्स करा, तो उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने नहीं करा, राइट, जब हमने डिजाइन बनाया, उसका यहाँ के बच्चे ना डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर करते हैं कुछ। मतलब डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी काम कर रहे हो हर एक टाइम पिक्चर लेना। तुमने ऐसे जो स्केच करी ना, मान लो कुछ भी रोबोट बना रहे हो, उसके लिए स्केच किया, उसका पिक्चर लो, उसको प्रॉपर बनाओ। फिर उसके बाद कैड बनाया उसको, और सारे प्रोजेक्ट्स का कोशिश करो कि तुम एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाओ।
और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स लो, क्योंकि जब तुम इंटरव्यू दोगे ना तो वो तुमसे पूछेंगे कि मतलब अच्छा तुमने, ठीक है, 5DOF रोबोट तो बना दिया तुमने, ये फीडबैक कंट्रोल कैसे काम करा, उसको फिक्स कैसे करा, मतलब उनको देखना है कि तुमने इंट्यूटिव थिंकिंग है कि नहीं और क्रिएटिविटी है कि नहीं, और तुमने एक्चुअली कितना थ्योरेटिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगाया है। तो ये सब यहाँ पे मैटर करता है मैकेनिकल के लिए। हार्डवेयर इज हार्ड, लेकिन अगर तुमने हार्डवेयर बनाया, जैसे पीयूष, याद है आपको पीयूष? हाँ हाँ, हाँ। पीयूष तो बिल्कुल याद है। तो पीयूष ने जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे थे, तो मैं हमेशा सोचती थी कि अगर पीयूष यहाँ रहेगा तो पीयूष विल डू रियली गुड हियर, क्योंकि उसके बहुत सारे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स थे, पता नहीं उसने डॉक्यूमेंट कितना करा, बट कुछ नहीं समबडी किया उसने लाइक, डॉक्यूमेंट। मैं हाँ, उसको इतना बोलता था डॉक्यूमेंट कर ले, बट कभी नहीं but किया। हाँ। somebody like Piyush here would have a website where they would talk about their 3D printer, where they would talk about their writing machine, and how they developed it in their first year, and then what they did in their second year and third year. मतलब जिस टाइप की मतलब बेसिकली जिस टाइप की ग्रिड एक्स एनर्जी की वेबसाइट है, where they're telling their stories, they will have something like that. एंड उसके बाद हाँ, मैकेनिकल के लिए हैंड्स ऑन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो फॉर्मूला वन टीम्स में काम करो, कॉम्बैट रोबोटिक्स टीम में काम करो, बहुत ज्यादा हार्डवेयर इन्वॉल्वमेंट रखो, हाथ बहुत साफ होना चाहिए। जैसे मेरा हाथ नहीं साफ है मैकेनिकल टूल्स को लेकर के, बट ठीक है, मतलब मेरा चल जाता है कि मैं कोडिंग वोडिंग ज्यादा करती हूँ, लेकिन अगर वो स्किल सेट है, अगर तुमको सीएनसी चलाना बहुत अच्छे से आता है ये सब, तो स्पेशली फॉर मोर कोर एकदम ही ऐसे टेक रोल्स के लिए दो थिंग्स एड अ लॉट ऑफ वैल्यू। इंटर्नशिप में डेफिनेटली यू विल गेट टू, जैसे जहाँ पे ये सब भी देखते हैं मैकेनिकल के लिए रोल में कि अच्छा यू डिजाइंड अ पार्ट, बट हैव यू डिजाइंड अ पार्ट दैट्स लाइक हाउ वुड यू डिजाइन अ पार्ट फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग, लाइक जब मास मैन्युफैक्चर, बस ये भी नहीं बोलेंगे मास मैन्युफैक्चर करना है, ऐसा पार्ट है, सिंगल पार्ट है, उसको कैसे डिजाइन करोगे, ये असेंबली है तो कैसे डिजाइन करोगे, या ये असेंबली है, इसके तुमने 100 पार्ट्स बनवाए, चाइना में बने, तुमको देखना है कि फेलियर एनालिसिस कैसे करोगे। तो इस टाइप के उनके प्रैक्टिकल डिजाइन चैलेंजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं जो एमओएम से हैं, या फिर ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और वो सब बेसिक्स जो हम पढ़ते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर ऑफ कॉलेज में, उसको बहुत ही डीप लेके जाते हैं, ल्यूब्रिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। उस टाइप में मतलब theoretical, they need to see that you're really good theoretically because that sets you apart as an engineer, like hands on काट छाट, मतलब कारपेंटर भी कर लेगा, राइट, और या फिर एक टेक्नीशियन भी चीजें चला लेगा, सीएनसी मशीन या लेथ हमसे अच्छा चला लेगा, लेकिन what sets you apart as an engineer is how good you are theoretically. And like I recently talked to a principal engineer from a company T, and then he was telling me that how he had his own workshop, his own lathe machine, and he created this amazing thing. And I was like, how did you do the theoretical thing? So यहाँ पे एक ऐसे मैकेनिकल डिजाइन की बहुत पॉपुलर बुक है, सिंगली है। He said कि अरे मैंने सिंगली भी लाइक वर्ड टू वर्ड लाइक एंड टू लाइक फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज मेरे को रटा हुआ है टाइप्स। So you have to have like really solid theoretical knowledge. uh, तो वो मैटर करता है। So after your internship and after you graduated, so now I know you work at Intel. So some background on how did you land up with that job? And हाँ, I know you are a mentor at Alumni Association of your college as well. तो थोड़ा उसके बारे में भी। Yes. So when I started looking for a job, I was applying and I just applied through their portal. I feel having NASA on my profile really helped because I got an interview in a day. I know that when people are in US, they have to apply for a lot of jobs. As I said, because I had such a strong brand tag on my resume, I was fortunate that way. So I was getting interviews. So I got this interview. I think it was my third interview. Before that, I had gotten to panel rounds for two interviews and panel round and for one third round, and then I didn't get in. And this was my third interview, and I got the job. So it had three different rounds. Third round is usually like a panel round where they make you present, ask a lot of questions with a lot of people, and there were two other rounds with one hiring manager kind of engineer, like a senior engineer. Cool. And हाँ, अब you are a mentor at your alumni association UCLA में, and as you said you judged the hackathon, काफी कुछ कर रही है अलग अलग, तो bit more about that, and if someone wants to reach out to you for some guidance, so how can they?
Yeah. So I did a lot of outreach at VIT, and I also did outreach for I did like teaching assistantship positions at UCLA. I was also involved with Graduate Society of Women Engineers. I feel really deeply about education because I feel education has the ability to really change lives. It's the biggest equalizer. There is certain amount of privilege you definitely need for education. Nothing is a really equalizing factor in the world anymore, right? There is always a disparity. But I think education still comes close. जैसे अभी मेरे को क्रिकेटर बनना होता तो उसमें थोड़ा ज्यादा शायद इन्फ्लुएंस लगता है, बहुत ज्यादा टैलेंट लगता है, बहुत कम लोग बनते, बहुत कम लोगों को चांस होता है. बट इंजीनियर बनना रिलेटिवली सक्सेस के चांसेस काफी हाई हैं, नंबर्स सपोर्ट अस, राइट? तो आई फील कि एजुकेशन पे बेट काफी इजीली लिया जा सकता है, रिस्क काफी लो है. So I believe a lot in education because the only thing that my parents did differently in Ara was that they spent, my parents never took a trip. Like कभी हनीमून पे छोड़, मतलब ऐसा नहीं था कि आरा के हैं तो बोध गया चले गए टाइप्स. वो भी नहीं किया मेरी फैमिली ने. मतलब समर वेकेशन में पता ही नहीं था कि मतलब समर वेकेशन हुआ है तो छुट्टी नानी के घर जाओ. मतलब मेरे मम्मी पापा ने कभी रिलेटिव्स के साथ हैंग आउट करने का प्रेशर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला. तो हम लोग बहुत ही आइसोलेटेड हैं. आई बिलीव डीपली इन इट. इफ everything works out well, I really hope to become a professor. So I believe so much in it. So I do a lot of outreach. So I wanted to be associated. I actually keep talking to professors at VIT as well, the ones I was close to. And like I had like certain suggestions for curriculum improvement at VIT. Like control system was not mandatory for us, which is such a stupid thing to do because it's so important. So I reached out to them for that. So things like that. And UCLA gives the opportunity, like you can apply a form if you want to be an alumni mentor, and then they can select you. So I applied for that. So I got it that way. And then I actually mentored a lot of students through that. And even through LinkedIn, a lot of people, like I had a good amount of following on LinkedIn. So I get a lot of mentorship requests. Like at one point, I don't know if you know, but I was mentoring students for 3 months straight, every day two students. So I really believe in just whatever, like nobody had told me about funding opportunities or how to apply in UCLA. So I knew it. So what I did after I got it, whoever would join newly, I would go on those groups and I would post a really long post saying ki these are the ways to apply for it. So I feel, matlab, I really believe in education. So that's why I believe a lot in giving back whatever I know, because at various different places in my life, just ignorance and just not having someone to help me really put me behind. And I want to work as someone who is at least impacting certain lives. And also my parents were teachers, so that gene is really strong in me. So whenever my एग्जैक्टली मतलब a lot of people think कि नहीं वी आर अ बिट शो ऑफ अगर हम लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं. नहीं यार, इट्स दी प्लेटफॉर्म टू शो योर मतलब प्रोफेशनली तुम कुछ भी करते हो Hmm. एजुकेशन में तुम्हारी जॉब पे पोस्टेड ऑन दैट. Yeah. मतलब इवन इफ नॉट फॉर पीपल टू नो, काफी बार हायरिंग मैनेजर्स ही देख लेते हैं यार. मतलब आई Right. गेट इन लॉट ऑफ रैंडम मैसेजेस फ्रॉम हायरिंग मैनेजर कि दिस इज द जॉब this we have this opening, do you want to Ah, apply, and your exactly. profile matches us. Random people reach out for requests like Yeah. अभी आई वॉज वॉचिंग शार्क टैंक थोड़े दिन पहले, तो मैंने देखा कि इस बच्चे को मैं कहीं से जानता हूँ. दैट गाय रीच्ड आउट टू मी 2 years बैक कि थोड़ा हेल्प चाहिए डिजाइन में वगैरह वगैरह. तो दैट हैपेंस अ लॉट. जब मौका मैं मिले तो लिंक्डइन पे डाल दो. शार्क टैंक देखती हूँ, फिर देखती हूँ कि वीआईटी के बहुत सारे सीनियर्स आए हैं शार्क टैंक में. आई थिंक वन थिंग दैट वीआईटी हैज डन ब्यूटिफुली इज द इंक्यूबेशन थिंग. यस, भाई इतने डेफिनेटली. सारे लोग, वो एक बायोनिक्स वाला स्टार्टअप आया था, उसके सीटीओ को निमिष, रीच आउट यस, किया मैंने. हाँ. उसने रिप्लाई भी करा मेरे को. फिर उसके बाद ना इतने सारे, मतलब, और टेक स्टार्टअप्स एक्चुअली वीआईटी से आ रहे हैं भाई. क्या खुशी यस, होती है देख के, क्या खुशी होती है देख के. मतलब कोई टेक स्टार्टअप आता है, आई गेट इंटरेस्टेड कि मतलब हार्डवेयर का कुछ तो सही सेक्सी सा आया है, देन आई सर्च, देन वो बंदा वीआईटी से है. इट्स लाइक
the most pride that I have felt, like VIT has done एग्जैक्टली। and executed it beautifully. And मतलब शिवांशु से भी ऐसे बात होते रहती है, हाँ, तो उसने भी मतलब पूरा बताया कि मतलब VIT से क्या क्या रिसोर्सेज मिले एंड कितना पैसा मिला, एंड आई फील लाइक ब्रिलियंट, लाइक अमेजिंग। आई डू अ एपिसोड विथ हिम आल्सो कि मतलब भाई क्या क्रेजी कर रहा है रिसोर्सेज भाई। है। हाँ भाई, उसके बहुत साथ क्रेजी भी कर करना रहा है। ये, लेकिन लोगों के जिन्होंने मतलब इंडिया में हार्डवेयर स्टार्टअप्स खोले हैं भाई, लाइक क्रेजी भाई। क्रेजी भाई, क्रेजी, लाइक लेजिट कल क्रेजी, लाइक। कल वो आई सॉ पोस्ट ऑन लिंक्डइन फ्रॉम एथर एनर्जी का को-फाउंडर। हम्म। तो उसने डाला था भाई कि नाउ इज द टाइम जब हम दिखा पा रहे हैं कि इंडिया में भी हार्डवेयर स्टार्टअप बन सकते हैं, कोर हाँ टेक भाई। हार्डवेयर स्टार्टअप बन सकते हैं। हार्डवेयर इज हाँ। हार्ड, बट हम कर रहे हैं यार। हाँ तो भाई, आई इंडिया में वेट तो वन डे और कि भी हार्ड है क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास। लाइक अमेरिका में तो चलो एग्जैक्टली। हार्डवेयर कर भी रहे हो तो इकोनॉमी, पैसा है इनके पास। लेकिन इंडिया में तो भाई जो कर रहा है ना भाई, like I can't even imagine the, resilience it takes to do something like that. Like it's crazy. एग्जैक्टली। So इंडिया में हार्डवेयर सुनते ही आधे वीसी तो ऐसे ही हट जाते हैं कि नहीं, हम हार्डवेयर हाँ। फंड नहीं करते हैं। हाँ। और मतलब एक दोस्त है, मतलब वो ये सब बीसीजी में थी वो भी, अभी आईएमबी की थी। तो एक्चुअली गोल्ड मेडलिस्ट है आईएमबी की, और फिर बीसीजी में थी, अभी उसने चेंज किया। तो उससे मैं बात करी थी हार्डवेयर प्रोस्पेक्ट्स के इंडिया में क्या, तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं फील्ड जिसमें दे आर इंटरेस्टेड, जिसमें से पैसा बनने का पोटेंशियल होता है। जैसे आई फील लाइक बायोनिक्स स्टिल द फंड बिकॉज दे सी अरे हाँ इसमें तो बहुत। लेकिन अगर अभी हम जाएं और हम कहेंगे कि नहीं हमें तो कुछ बॉस्टन डायनामिक्स जैसा बनाना है, या हमें तो कुछ बहुत ही हार्डकोर रिसर्च करना है और ऐसा कुछ बनाना है जिसका उतना कुछ प्रॉब्ली शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, राइट? तो मतलब वो फंड नहीं होगा। तो इट्स लाइक वेरी स्टिल क्वाइट गिमिकी कि मतलब कौन सी चीजों में तुमको पैसा मिल सकता है, कौन सी चीजों में नहीं मिल सकता है, और कैसे तुम सेल करते एग्जैक्टली। हो, क्या स्टोरी बताते हो तुम अपनी। बट yeah, it's really beautiful to see these people thrive so much, and it's so inspiring. Like I find that बहुत hard है भाई, and it's so amazing that these kids are doing it. So भाई बहुत मजा आया तेरे से बात करके। मतलब इट्स मतलब इतना चीजें मुझे, मतलब आई नो यू सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, अब तो हो गया 7-8 साल, बट स्टिल इतनी नई चीजें पता चली है कि कहाँ से कैसे बैकग्राउंड से यू मेड इट थ्रू। तो बहुत मजा आया बात करके। आई विल इतना पुट इन योर बोलती हूँ मैं लिंक्डइन। फिर भी आपको नहीं पता है। अरे यार, नहीं नहीं पता यार इतना सब कुछ। हाँ, बट आई विल पुट इन योर लिंक्डइन का टैग इन द डिस्क्रिप्शन। तो इफ समवन वांट्स टू रीच आउट टू, दे कैन।